الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے غوث اعظم زنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ جو دنیا میں آواز آئے بولیں زور سے بولیں 2 بج گئی شاید نیند آ رہی ہے نیند تو نہیں آ رہی ہے 1:30 بجا ہے ابھی تو نیند کا ٹائم نہیں ہے جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں سرے میں فی الکرم اتنا میرے سرکار ہو جائے سرے میں فی الکرم اتنا میرے سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں
اور دیدار ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. جشن آمد رسول کانفرنس. نعرہ تکبیر. نگاہیں منتظر ہے جائیں اور دیدار ہو جائے. اب آپ جتنی محبت اپنے آقا سے کرتے ہیں اتنی ہی بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی. ہلکا سا کم کر دو، تھوڑی سیٹی مارا، بہت ہلکا معمولی. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیٹ نہ مارے. غلام حسین صاحب حاضر ہیں آپ؟ چلیے ماشاءاللہ سبحان اللہ. آئیے آگے آئیے. اور ناظم صاحب آگے آئیے. اس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا عید میلاد تھا؟ پتہ تو ہوگا آپ کو، بتایا ہوگا آپ کے مسجدوں کے اماموں نے، خطیبوں نے، علاقے کے عالموں نے کہ یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ عید میلاد النبی کا جشن ہے. ابھی کون سی ہجری چل رہی ہے؟ تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیں آپ کو. 1400. بولو جوانوں، کمیٹی والے کہاں گئے؟ 1447. تو یہ 1500 سے کیسا ہوا پھر؟ جواب دو جلدی سے، تھوڑا ادھر کو. کتنی؟ نہیں 63 سال. ہاں تو ہجری جو ہے نا بھائیو، بس پہلے ایک بات سن لو پھر میں شروع کرتا ہوں، انشاءاللہ اچھا لگے گا آپ کو. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو جب سے ہجری کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 53 سمجھ رہے ہیں پہلے اور 10 سمجھ گئے. ٹوٹل عمر کتنی ہوئی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری؟ 63. 1447 یہ چل رہی ہے، ہجرت کا آغاز ہوا، کیونکہ 10 سال ادھر نکالیں گے آپ، ٹھیک ہے. 1447 اور 53 1500. اب بتائیے آپ مجھے، 1500 سال گزر گئے، یہ موسم کی بہار، یہ ہر طرف چہل پہل، یہ دیوانوں کا ہجوم اور ان کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ، ایسا لگتا ہے کہ 1500 سال گزر گئے. ایسا لگتا ہے گویا کل ہی کی بات ہے کہ میرے آقا اس خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہوئے. کتنے لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے نام پر حملہ کرتے ہیں، ناموس رسالت پر باتیں کرتے ہیں اور مصطفیٰ کی شان گھٹانا بڑھانا چاہتے ہیں. کوئی چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کا نام نیچا ہو جائے، لیکن اے لوگوں آپ دیکھیے، فتویٰ لگانے والے، جلوسوں کو منع کرنے والے، جھنڈے کو منع کرنے والے، عید میلاد النبی پر ڈیکوریشن کو کوسنے والے اپنی آنکھوں کو اس وقت ملتے رہ جاتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کا عید میلاد آتا ہے. وہ علاقے جہاں پچھلے سالوں تک 2000 1000 5000 تھے، الحمدللہ وہاں سیدھے اب 10,000 ہو گئے. یہ اس بات کی دلیل ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اے لوگوں، میرے آپ کے رب کا قرآن میں وعدہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے مصطفیٰ، ہر آنے
والی گھڑی، ہر آنے والا پل، ہر آنے والی ساعت پچھلی ساعت سے بہتر ہے، تو آپ یہ مان کے چلیے کہ جتنے دن آگے بڑھتے چلے جائیں گے، جتنے سال آگے بڑھتے چلے جائیں گے، مصطفیٰ کے دیوانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور ہم تو بریلی شریف کے اطراف میں رہتے ہیں، اور بریلی کی دھرتی سے ہمیں اعلیٰ حضرت نے یہ پیغام دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ یہ منع کرنے والے، یہ فتوے داغنے والے اپنے آپ میں جل کر کے مر جائیں، لیکن بریلی کی دھرتی سے اعلیٰ حضرت پیغام دیتے ہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ جلدی سے رسالت۔ ایک حدیث شریف سنیے، پھر میں آگے اپنے گفتگو کو بڑھاتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ مصطفیٰ کی حدیث کے حوالے سے بات آگے بڑھے گی، تو آپ تیار ہیں؟ بس جلدی سے متن سنیے، اس کے بعد میں حدیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ان علی رضی اللہ تعالی ان یہودیا کان یقال له فلان حبر کان له علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنانیر فتقاضى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا یہودی ما عندي ما أعطيك قال فإني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أجلس معك فجلس معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداء وكان أصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعددونه ویتوادون ففتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الذي يصنعون به فقالوا یا رسول اللہ یہودی یحبسك فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعنی ربی ان اظلم معاہدا وغیرہ فلما ترجل النهار قال اليهودي اشهد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ وشطر مالی فی سبیل اللہ اما واللہ ما فعلت بک فعلت بک الذی الا لانظر الى ناتک فی التوراة محمد بن عبداللہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ وملکہ بالشام لیس بفز ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا متزین بالفحش ولا قول الخنا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ وہذا مالی فاحکم فیہ بما اراک اللہ وکان الیہودی کثیر المال الى آخر الحدیث۔ لب کھولیے زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اجالا دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے۔ ٹریول ہلکا سا کم کرو، سنیے پیارے بھائیو، جہاں جہاں مصطفیٰ کی حدیث جاتی ہے وہاں وہاں اجالا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کی حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کو لگا ہوگا کہ آپ نے شاید تراویح کی نیت باندھ لی ہے۔ اے لوگوں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ اہل علم جانتے ہیں، ذی شعور جانتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اے لوگوں، یہ اسی کے بس کا روگ ہے کہ جس نے استاذ کے سامنے زانو ادب طے کیا ہو، جس نے کسی استاذ کے سامنے سبق در سبق پڑھا ہو، جس نے اے لوگوں کتابوں کو باقاعدہ استاذ سے سیکھا ہو، یہ اسی کا کام ہے۔ اس لیے اے لوگوں، یہ بہت آسان نہیں، بڑا ڈیفیکلٹ اور ہارڈ ہے۔ اس لیے میں اپنے علماء سے گزارش کرتا ہوں، جب بھی آپ کے سامنے اس طرح کی گفتگو ہو جو مصطفیٰ کی حدیث کے حوالے سے ہو، تو اس کا اپریسیشن
اپریشیشن ہونا چاہیے، اس کی سراہنا ہونی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اب سنیے پیارے بھائیوں، جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مصطفیٰ کی بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں آج مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، اپنے ہیں مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، بیگانے ہیں مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ایمان والے ہیں مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نان بلیور نان مسلم ہیں مسلم مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ جہاں دیکھو مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، پورب میں جاؤ مصطفیٰ کی بات، پچھم میں جاؤ مصطفیٰ کی بات، اتر میں جاؤ مصطفیٰ کی بات، دکھن میں جاؤ مصطفیٰ کی بات۔ ارے ہر زبان میں مصطفیٰ کی بات، عربی میں مصطفیٰ کی بات، انگلش میں مصطفیٰ کی بات، سنسکرت میں مصطفیٰ کی بات، ہندی میں مصطفیٰ کی بات، ملیالم میں مصطفیٰ کی بات، تیلگو میں مصطفیٰ کی بات، کنڑ میں مصطفیٰ کی بات، گجراتی میں مصطفیٰ کی بات، مراٹھی میں مصطفیٰ کی بات، ہر ملک میں مصطفیٰ کی بات، ہندوستان میں مصطفیٰ کی بات، جرمنی میں مصطفیٰ کی بات، جاپان میں مصطفیٰ کی بات، انگلستان میں مصطفیٰ کی بات، ہالینڈ میں مصطفیٰ کی بات، انگلینڈ میں مصطفیٰ کی بات۔ اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے تقریباً 203 کنٹریز پائی جاتی ہے، اور ہر کنٹری میں مصطفیٰ کا نام لینے والے، مصطفیٰ کی بات کرنے والے مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ اے لوگوں، ہم مصطفیٰ کی بات کریں، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ آپ مصطفیٰ کی بات کریں، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ مصطفیٰ مفتی رضا صاحب اپنے آقا کی بات کریں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ مولانا خورشید صاحب اپنے آقا کا قصیدہ پڑھیں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت وہی ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی اپنی زبان سے دینے لگے۔ اب میرے مصطفیٰ کی شان کتنی اعلیٰ ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ ہم ہی مصطفیٰ کو لاجواب نہیں کہتے ہیں، صرف کلمہ پڑھنے والے ہی مصطفیٰ کو لاجواب نہیں کہتے ہیں، بلکہ اے لوگوں، مصطفیٰ کو لاجواب تو وہ بھی کہتے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن ہاں تعصب کا عینک اتار دیا ہے انہوں نے، اور وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں the answer to this question will remain negative until the end of this world۔ اے لوگوں، کوئی کہتا ہے کہ مصطفیٰ کی نظیر ہو سکتی ہے، کوئی کہتا ہے مصطفیٰ کی مثال ہو سکتی ہے، تو ہم جواب دیتے ہیں کہ مصطفیٰ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، ان کی کوئی نظیر نہیں ہو سکتی، ان کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر یہی بات کوئی بے ایمان اپنی زبان سے کہنے لگے تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ یہی بات ڈاکٹر برنارڈ شاہ نے کہی تھی، وہ کہتا ہے اے لوگوں، تم اس سوال کا جواب چاہتے ہو کہ مصطفیٰ سے بہتر بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے، تو وہ کہہ رہا ہے I firmly believe the answer to this question will remain negative until the end of this world، کہ مصطفیٰ کے ہمسر کوئی ہو جائے، مصطفیٰ کے برابر کوئی ہو جائے۔ وہ کہنے والا کہہ رہا ہے خدا کی قسم، یہ دنیا تو ختم ہو سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ پیارے بھائیوں، مصطفیٰ کی شان کیا ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، سنیے میں بتاؤں گا حدیث کے حوالے سے بھی، لیکن آج ٹی وی کی اسکرین پر آ کر کے جو اینکر مصطفیٰ کے خلاف بھونکتا ہے، جو اینکر اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اسلام ٹیرر کی بات کرتا ہے، کوئی ظالم اینکر آ کر کے کہتا ہے اسلام کے پیغمبر نے آتنکواد کی بات کی ہے، گھروں کو جلانے کی بات کی ہے، مصطفیٰ نے انسانوں کو شوٹ کرنے کی بات کی ہے۔ میں کہتا ہوں ظالم تو جھوٹ بولتا ہے، مانوتا کی بات کی ہے مصطفیٰ نے، انسانیت کی بات کی ہے مصطفیٰ نے۔ اے لوگوں، ذرا اس وقت کا جائزہ لے کر کے دیکھیے جب اس خاکدان گیتی پر میرے آقا جلوہ افروز نہیں ہوئے تھے۔ ارے انسان تو اس وقت بھی پائے جا رہے تھے۔ اے لوگوں، آتنکواد اس وقت تھا، ٹیرر اس وقت تھا، دہشت گردی اس وقت تھی۔ کیسی دہشت گردی، کیسا آتنکواد؟ ارے یہ ایک آتنکواد ہی تھا کہ ایک باپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی بیٹی کا گلا دبا دیا کرتا تھا۔ یہ ایک آتنکواد ہی تھا کہ اگر راستے میں چلتے ہوئے کسی کا کھاندا کسی کے کاندھے سے لگ جایا کرتا تھا، اسی بات پر خون کی ندیاں بہ جایا کرتی تھی۔ یہ آتنکواد ہی تھا کہ اگر کسی عورت کے سامنے اس کا شوہر مر جایا کرتا تھا، اس عورت کو کسی بند کمرے میں چھوڑ دیا جاتا، وہی بھوکا رکھا جاتا، وہی پیاسا رکھا جاتا۔ بعض وقت اس کے چہرے پر کالا پوت کر کے جانور کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر گلی گلی میں گھمایا جاتا، اور یہ بتانے کی کوشش کی جاتی کہ یہ دیکھو اتنی من
मनहूस औरत है, इसकी वजह से इसके शौहर का इंतकाल हो गया है। ये आतंकवाद था कि एक औरत से उसके जीने का अधिकार छीना जा रहा था। ये आतंकवाद था कि जब किसी का बाप मर जाया करता था, उसकी दौलत पर उसके बेटे कब्जा कर लिया करते थे, बेटी के एक रत्ती नहीं दिया करते थे। लोग कहते हैं कि इस्लाम ने दिया क्या है, लोग कहते हैं मेरे आका ने इंसानियत को दिया क्या है। ऐ लोगों, आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपकी जायदाद में, यानी अगर कोई इंसान है, कोई मर्द है, उसकी जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। ये आज का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये भारत का कानून कह रहा है। लेकिन ये कानून कब कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कब कह रहा है? ये 14वीं सदी, ईसवी 14वीं सदी में कहा जा रहा है और 20वीं शताब्दी में ये ऐलान दिया जा रहा है। कब? जब बच्चियों के हुकूक पामाल किए जाने लगे। लेकिन ऐ लोगों, आज का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बाप की जायदाद में बेटी का भी हक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये कानून दुनिया वालों के लिए नया होगा, लेकिन मुस्तफा के गुलामों के लिए नया नहीं है, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों के लिए नया नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे सुनो, मैं बताना ये चाहता हूँ, जरा 1400 साल पहले की तारीख का जायजा लेकर के देखिए। इस जमीन के ऊपर अगर बेटियों का सबसे पहले हक किसी ने बाप की जायदाद में किया है तो किसी और मजहब ने नहीं, बल्कि तेरे मेरे मजहब इस्लाम ने किया है। जरा कुरान का मुताला करके दे। रब का कुरान फरमाता है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। मेरा तुम्हारा कुरान ऐलान कर रहा है कि जिस तरह से मर्द की जायदाद में, बाप की जायदाद में उसके बेटे का हक है, इसी तरह से उसकी बेटी का भी हक है। बाप की जायदाद में अगर बेटी का हक सबसे पहले किसी ने दिया है तो वो कोई और मजहब नहीं, बल्कि वो मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो इस्लाम को टेरर से तशबीह देते हैं, जो इस्लाम को आतंकवाद कहते हैं, जरा उस वक्त का आतंकवाद देखें कि एक इंसान जब इंसान के बराबर से गुजर जाता और उसका कांधा कांधे से लग जाया करता था, खून की नदियां बह गई। इसी बात पर इंसान की गर्दन मार दी जाती थी और जंग कोई वहीं खत्म थोड़ी हो जाती थी। इसी बात पर नस्ल दर नस्ल जंगो जिदाल, कत्लो क़िताल चलता रहता था। एक इंसान ने दूसरे का कत्ल कर दिया, दूसरे कबीले ने इसका कत्ल कर दिया, नस्ल दर नस्ल कत्ल चल रहा है, जंग चल रही है, लड़ाइयों का बाजार गर्म है। लेकिन है लोगों, जब मेरे मुस्तफा आए हैं तो वो तालीम दी है, वो प्यार और मोहब्बत का दीप जलाया है कि वो कल तक जो लोगों की गर्दन मार दिया करते थे, वो जो छोटी छोटी बात पर लड़ाई और झगड़ा किया करते थे, जो छोटी छोटी बात पर गले काट दिया करते थे, मुस्तफा की तालीम से इतने मुतासिर हुए हैं कि अब वो गले काटने की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो गले मिलाने की बात करते हैं। अगर ये इंकलाब किसी ने पैदा किया है तो मुस्तफा जाने रहमत ने पैदा किया है। इसी को शायर मोहब्बत ने कहा है, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। है बाबा, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। मुर्दों को मसीहा कर दिया। अब सुनिए प्यारे भाइयों, ये इस्लाम को टेरर से तशबीह देते हैं, लेकिन एक वो शख्स के जिसने तासुब का ऐनक उतार के पढ़ा तो इसने मेरे तुम्हारे मजहब के ताल्लुक से कितनी प्यारी बात की। वो कहता है, ही मस्ट बी called be the savior of humanity, he must be called the savior of humanity। ऐ लोगों, तुम कहते हो वो इंसानियत को खत्म करने वाले थे, लेकिन एक प्रोफेसर जो नॉन मुस्लिम है लेकिन हकीकत की बात करता है, वो कहता है वो इंसानियत को खत्म करने वाले नहीं, बल्कि वो तो इंसानियत को जीवन दान देने वाले थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Like him were to assume the dictatorship of modern world, he must succeed solving its problem। ऐ लोगों, वो कह रहा है अगर आज भी दुनिया के लोग मुस्तफा का कानून ले आए, मुस्तफा का तरीका इख्तियार कर लें, जो तरीका मुस्तफा ने बताया है, आज भी लोग उस तरीके पे अमल कर ले तो पूरी दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। देखो प्यारे भाइयों, यही बात मैं कह रहा हूँ और ये कोई एक बात थोड़ी है। अगर आप कहोगे तो ऐसे मेरे दिमाग में 100 कोटेशन है जो नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम लोगों ने कहे हैं, और वो कितनी मशहूर बात है जो उसने कही है। किसने कही है? डॉक्टर माइकल
हार्ट ने कही है। उसने क्या कहा था? उसने कहा था माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन may surprise some readers and may be questioned by others, but he was only man in human history who was supremely successful on both the level religious and secular. ऐ लोगों, हमने मुस्तफा को लाजवाब कहा तो दुनिया ने हमें ताना दिया कि मुस्तफा के तुम गुलाम हो, इसलिए तुम मुस्तफा को लाजवाब कहते हो। लेकिन डॉक्टर माइकल हार्ट तो मुस्तफा का गुलाम नहीं है। ऐ लोगों, उसने पढ़ा है मुस्तफा को तो क्या कह रहा है? ऐ लोगों, जब उसने किताब लिखी थी ना द 100, तो लोगों ने सोचा था इस किताब के अंदर ये हजरत ईसा का नाम देगा, क्योंकि ये एक अनुयायी है हजरत ईसा का। किसी ने कहा था अरे नहीं नहीं यार, ये नाम देगा तो इब्राहिम लिंकन का देगा, क्योंकि ये उनकी कानून की थ्योरी पढ़ने के बाद एडवोकेट बना है। किसी ने उसकी बात को रिजेक्ट किया, कहा नहीं हरगिज़ नहीं, अगर ये पहले नंबर पर नाम देगा तो बहुत बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन का देगा, क्योंकि खुद में ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी तो है। लेकिन हैरत की उस वक्त इंतहा नहीं रही कि जब वो किताब प्रेस में गई और प्रेस से छप के जब वो बाहर आई है, मार्केट में पब्लिश हो गई, तो उस किताब के अंदर द फर्स्ट नेम इन द बुक 100 वाज द नेम ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह है लोगों। उस किताब के अंदर पहला नाम न हजरत मूसा का था, पहला नाम न ईसा का था, न इब्राहिम लिंकन का था, न नेपोलियन बोनापार्ट का था, न भारत के गांधी जी का था, न मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन का था, बल्कि उस किताब के अंदर पहला नाम था तो न मूसा का न ईसा का, बल्कि पहला नाम था तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का था। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, साथ में पढ़ लीजिए, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। और गमज़दों को रजा मुज्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल अहमद बिलासपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद। बहुत कम है और 2 बजने वाले हैं, और मुझे मालूम है कि आप भी नींद की आगोश में जाने वाले हैं। मुझे पैगाम भी आपको देने हैं। मैंने क्या कहा, अगर मैं इस तरह की बातें करूंगा तो बहुत सारी बातें हैं मेरे जहन में, लेकिन हाँ भाइयों ये जरूरी भी है। इसलिए जरूरी है कि आज लोग तुम पर हमला करते हैं, इस्लाम पर हमला करते हैं, हमारे आपके पैगंबर पर हमला करते हैं। आज देख रहे हो आप, जब 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकला है, पूरी दुनिया में निकलते हैं जुलूस, लेकिन मुस्तफा के दीवानों का जुलूस सबसे नुमाया, सबसे यकता होता है, सबसे अलग, सबसे तन्हा होता है। और ये पहचान मुस्तफा के दीवानों की होनी चाहिए। ये बातें इसलिए भी जरूरी हैं ऐ लोगों कि आज लोग इस्लाम पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये बातें होने लगे तो आपकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम इस्लाम का सही चेहरा लोगों के सामने पेश करें। हम बताएं उनको, देखो भाइयों कि मेरे आका की तालीम क्या है, मेरे आका आए हैं तो क्या इनकलाब लेके आए हैं। आज आप देखते हो मेरी माँ बहन बेटे बेटियां बैठी हैं, मैं इनकी तरफ तवज्जो करके एक बात कहना चाहता हूँ। आज मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को ये जहन देने की कोशिश की जा रही है कि देखो बेटियों बहनों, आज तुमको इस्लाम में कोई इज्जत नहीं दी गई है, इस्लाम में तुमको कोई मकाम नहीं दिया गया है। आज खून के आंसू रोने को दिल चाहता है। हर आए दिन सोशल मीडिया पर खबरें पढ़ ली जाती है, कभी अखबार का तराशा सामने आता है, कभी कोई वीडियो आ जाती है। जवानों तुम भी मोबाइल चलाते होगे, तुमने भी देखा होगा, उस वक्त शर्म से सर झुक जाता है जब मेरी कौम की बेटी अपने घर से बाहर चली जाती है किसी गैर के साथ, वो नाक कटा देती है अपने बाप की, वो कभी सर उठाने के लायक नहीं छोड़ती है अपने भाई को। लेकिन ऐ लोगों, ये कमी हमारी है, ये कोताही हमारी है। वो आप कहोगे हमारी कमी क्या है, हमारी कोताही क्या है? आज दूसरे लोग हैं जिनको
ट्रेंड करके मार्केट में उतारा जा रहा है, जो हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का जहन को जो है वाश कर रहे हैं और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके इस्लाम के खिलाफ उनको उकसा रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुमको बुर्के में रख करके हर वक्त तुमको कैद कर दिया गया है, इस्लाम ने तुमको जीते जी कैद कर दिया है। और ये बातें मैं हवाई नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बातें मैंने अपनी कौम की बच्चियों से सुनी भी हैं। ए लोगों, मेरे सामने पिछले दिनों एक बात आई, एक बच्ची थी, उसका दिल चाहता है कि मैं आलिमा बन जाऊं, लेकिन ऐ लोगों उसने कहा अगर तू आलिमा बन गई, किसी ने कह दिया, तो तुझको कभी भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, हर वक्त तू बुर्के के अंदर कैद रहेगी, इससे बेहतर है कि तू आलिमा ही ना बने। लोगों, ये बात जब कही गई है तो मेरी भी कान में जब ये बात आई तो मैंने कहा हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। आप भी इस समाज का जायजा लेकर के देखिए, हमारे यहाँ ठगा और छुपाया किन चीजों को जाता है, जो कीमती चीजें होती हैं, सोना चांदी सबके सामने नहीं रखा जाता, उसको सेफ कवर करके रखा जाता है। इसी तरह से माल दौलत रुपया पैसा उसको सबके सामने नहीं रखा जाता, उसको छुपा करके रखा जाता है। ऐ लोगों, मेरे इस्लाम ने, मेरे पैगंबर ने एक बेटी की कीमत, एक बहन की कीमत सोने से ज्यादा बताई है, चांदी से ज्यादा बताई है, रुपये और पैसे से ज्यादा बताई है। यानी ऐ लोगों, तुम माल की, सोने की, चांदी की, रुपये पैसे की जितनी हिफाजत करते हो, ये तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन उससे भी ज्यादा कीमती है। अब रही बात कद्र की कि इस्लाम ने कद्र कितनी की है एक औरत की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बहनों से मेरी गुजारिश है, मेरी माओं से मेरी गुजारिश है कि वो मेरी बात को गौर से सुने। अगर से बात मेरी है, लेकिन ये पैगाम और फरमान मुस्तफा का है, जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जो मुस्तफा आए हैं इस दुनिया में तो संसार के लिए रहमत बन करके आए हैं। ऐ लोगों, मैंने क्या कहा आपसे, जो आज मुस्तफा के गुलामों को और मुस्तफा की कनीजों को ये जहन देने की कोशिश की जा रही है, इस्लाम में तुमको कोई इज्जत नहीं है। अरे मैं दावे के साथ कहता हूँ, जितनी इज्जतें बहनों को, बेटियों को, बीवियों को इस्लाम ने दी है, खुदा की कसम इतनी इज्जत किसी ने नहीं दी है। आप कहेंगे मौलाना इसका क्या सबूत है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वह जल्दी से सुन लीजिए। एक बेटी को एक बाप अपने हाथ से दबा दिया करता था, लेकिन जरा बताओ, वो जो अपनी बेटी को अपने हाथ से दबा दिया करता था, ऐसे समाज में मेरे मुस्तफा ने आकर के आंखें खोली है। आज आपने देखा होगा, आप किसी अस्पताल में जाते हैं, या आप किसी सोनोग्राफी सेंटर पे जाते हैं, या आप किसी अल्ट्रासाउंड सेंटर पे जाते हैं, तो वहां पर क्या लिखा होता है? वहां पर लिखा होता है कि हमारे यहाँ लिंग की जांच नहीं की जाती है। लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? कभी आपने अपने दिमाग पर ये जोर डालने की कोशिश की हाँ कि ये नारा क्यों लिखा गया है? ऐ लोगों, उसकी वजह ये है कि 2002 में ये भारत की रिपोर्ट है कि यहाँ पर जो आबादी का तनासुब था, मर्दों का आबादी का तनासुब ज्यादा हो रहा था और औरतों का तनासुब कम हो रहा था। उसकी वजह ये थी, रिपोर्ट उसकी ये थी कि लोग अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगा लिया करते थे कि माँ के पेट में पलने वाला वो बॉय है या गर्ल है, लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, ये पता लगा लिया करते थे। तो जिनको लगता कि लड़का है उसको जीने का अधिकार दे दिया करते थे, और जिनको लगता फीमेल यानी लड़की है तो उसका एबॉर्शन करा करके माँ के पेट में ही हमल को साकित करा दिया करते थे। बहुत तेजी के साथ जब ये काम हुआ है तो कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर अगर आज बेटी को दबा दोगे तो कल बहू कहां से लाओगे? इस तरह का नारा दिया गया। फिर एक नारा और दिया गया, और वो नारा क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। दिया गया कि नहीं दिया गया? जवानों, एक एक लफ्ज अपनी दिल की तख्ती पर लिखना और पूरी दुनिया वालों को बताना कि देखो मेरे आका आए हैं, तो आका की आमद से इनकलाब क्या पैदा हुआ है, दुनिया में रेवोल्यूशन और तब्दीली क्या पैदा हुई है। ऐ लोगों, अब देखो मुस्तफा की आमद से पहले का हाल आपने समाप्त कर लिया, और ये भारत का भी हाल आपने समाप्त कर लिया कि यहाँ पर जागरूकता अभियान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का नारा दिया गया। अब ये नारा आपके गांव की दीवारों पर लिखा देखा होगा, ये नारा आपने बस स्टेशन बस स्टॉप पर लिखा देखा होगा, ये आपने नारा रेलवे स्टेशन पर लिखा देखा होगा, ये नारा आपने टिकट पर जगह जगह लिखा देखा होगा, जगह जगह
ताला का ये नारा है, ऐ लोगों, ये स्लोगन दिया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, यानी बेटी को बचना चाहिए, बेटी को पढ़ना चाहिए। ये नारा दुनिया वाले कहते हैं, ये मोदी जी ने नारा दिया है, ये भारत के कानून का नारा है। मैं फिर वही बात कहता हूँ, ये नारा दुनिया वालों को नया लग सकता है, ये नारा दुनिया वालों के लिए नया हो सकता है, लेकिन इस्लाम के मानने वालों के लिए नारा नया नहीं है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूँ जरा पढ़ मुस्तफा की हदीस, और मुस्तफा की हदीस में एक लफ्ज मिलता है जो आका ने बेटियों के ताल्लुक से फरमाया है, जो आका ने बहनों के ताल्लुक से फरमाया है। क्या फरमाया है मुस्तफा ने हदीस में बेटियों के हवाले से? क्या कहा है मुस्तफा ने बेटियों के बहनों के हवाले से हदीस में? ऐ लोगों, मेरे आका फरमाते हैं, मन आला सलास बनातिन फअदबहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना व अहसना इलैहिन्ना फलहुल जन्ना। आका फरमाते हैं, जिसने 3 बेटियों को पाला पोसा बड़ा कर दिया, उनकी परवरिश की, और जब उन्होंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, इज्जत के साथ उनकी शादी कर दी। अब ऐ लोगों, ये बात आपको जरा सी मालूम होती है कि जिसने 3 बेटियों को पाला, उनको बड़ा कर दिया, इज्जत से उनकी शादी कर दी, जेवर तालीम से आरास्ता उपरास्ता कर दिया, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। मेरे आका फरमाते हैं, फलाहुल जन्ना, मुबारक हो उसके लिए जन्नत है। यानी जो 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर देगा, वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। लेकिन ये नारा कहां दिया जा रहा है? ये नारा दिया जा रहा है उस जमीन में, ये नारा दिया जा रहा है उस इलाके में, ये नारा दिया जा रहा है उस खित्ते में कि जहां एक बाप अपनी बेटी को दफना करके ये लोगों आंसू नहीं बहाया करता था, बल्कि वो फख्र से अपना सीना चौड़ा कर लिया करता था। ऐसे समाज में मेरे मुस्तफा, जो लोग बेटियों को दफना दिया करते हैं, उनको फरमा रहे हैं भी ये बेटियां दफनाने की नहीं, बल्कि जन्नत कमाने की चीज है। तो सबसे पहले इस जमीन के ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का नारा किसी दुनियादार ने नहीं दिया है, बल्कि ये नारा किसी ने दिया है तो मदीने के मुख्तार ने दिया है। ये बेटी के ताल्लुक से मुस्तफा फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, किसी सहाबी ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 3 ना हो तो मुस्तफा फरमाते हैं, अगर किसी की 2 हो तो मौला उसको भी ये इजाजत फरमाएगा। किसी ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 2 ना हो, 1 बेटी हो तो मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत के खजानों में कमी नहीं है। अब जरा करीब से मेरी बात समझ लीजिए जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो कल तक बेटियों को मार दिया करते थे, लेकिन अब मुस्तफा से पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कम हो तो क्या करे? यानी कम है वो ज्यादा हो जाए उसकी तमन्ना कर रहे हैं। एक बात अभी खत्म नहीं होती है, ये बेटियों को सम्मान कौन दे रहा है? बेटियों को इज्जत कौन दे रहा है? कोई दुनियादार नहीं दे रहा है। अब बात सुनिए प्यारे भाइयों, पैदाइश बेटे की भी होती है, पैदाइश बेटी की भी होती है, लेकिन जब बेटी की पैदाइश होती है तो मेरे तुम्हारे पैगंबर ने क्या कहा है? ए लोगों, उसके पहले एक कुरान की आयत सुनिए। रब तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीब। उन बेईमानों की पहचान ये थी कि जब उनके यहाँ कोई बेटी जन्म लिया करती थी, उसके बाप का चेहरा गुस्से से काला हो जाया करता था। यानी ये बेईमान की पहचान है, ये मुनाफिक की पहचान है कि बेटी की पैदाइश से उसका चेहरा काला हो जाएगा, बेटी की पैदाइश से वो गुस्से से चूर हो जाएगा। आज भी है कुछ नाम निहाद कलमा पढ़ने वाले कि जब उनके घर में बेटी की पैदाइश हो जाती है तो उनके चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है, उनके चेहरे की खुशी गायब हो जाती है। ऐ लोगों, वो सब कुछ हो सकता है जो बेटी की पैदाइश पर मुंह को छोटा कर ले, लेकिन खुदा की कसम वो नबी का वफादार नहीं हो सकता। नबी का वफादार कौन होगा? आका फरमाते हैं, जब किसी घर में बेटी की विलादत होने वाली होती है तो उसके इस्तेमाल के लिए मेरा रब फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों रहमत की घटा इस घर में छाने वाली है, इसलिए कि इस घर में बेटी आने वाली है। तुम चले जाओ अपने रहमत के परों से उस घर को ढांप लो। किस घर को ढांपने का आदेश दिया जा रहा है? जिस घर में बेटी आकर के जन्म लेने वाली है। और जैसे ही बेटी की पैदाइश का वक्त आता है, हफ़्फ़तिल मलाइका, उस घर को मलाइका यानी फरिश्ते अपने नूरानी परों से ढांप लेते हैं। और जब वो दुनिया में आती है, बेटे की पैदाइश पर दुनिया वाले मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जब बेटी आंखें खोलती है तो नूरानी जमात फरिश्ते मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं, ए घर वालों, तुम्हें अल्लाह की रहमत बेटी का आना मुबारक हो। लोगों, कल
तक बेटी को जहमत समझा जाता था। खुदा की कसम अगर बेटी को रहमत किसी ने बनाया है तो मजहब इस्लाम ने। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक तरीका है मुस्तफा का, ये इज्जतें दी हैं बेटी को मुस्तफा ने। लोगों ये बेटी का हाल है। आगे बढ़ के एक बात और सुन लीजिए, एक बेटी का हाल माँ का भी हाल होता है, यानी एक औरत बेटी भी होती है और एक औरत माँ भी होती है। मेरी बहनों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं अपनी माँओं से गुजारिश कर रहा हूँ और भाइयों मैं तुमसे भी कह रहा हूँ कि देखो बेटी और माँ और बहन और बीवी क्या मकाम है औरत का इस्लाम के अंदर। एक औरत वो माँ होती है। अब इसके माँ का कैरेक्टर समाप्त करो, या अपने बहन के ताल्लुक से सुन लिया या अपने बेटी के ताल्लुक से सुन लिया। और जो लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को इज्जत नहीं दी है, अब मैं अगली बात ऐसी कहने जा रहा हूँ, खुदा की कसम चैलेंज करके कह सकता हूँ, जो कोटेशन जो बात अब मुस्तफा ने कही है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े रिफॉर्मर स्कॉलर को ले आओ, ऐसी बात उन्होंने नहीं कही होगी। ऐसी बात है लोगों, एक औरत जब वो माँ बन जाती है तो ऐ लोगों माँ, उसके हवाले से मेरे तुम्हारे पैगंबर फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। ए लोगों, अगर जन्नत तलाश करना हो तो जन्नत माँ के पैर तले है। ये फरमान किसका है? यानी एक औरत के पैर तले जन्नत है। ये किसने कहा है? ये इज्जतें किसने दी हैं? हकीकत की जबान में तुम्हें भी कहना पड़ेगा, अगर ये सम्मान किसी ने दिया है तो मुस्तफा ने दिया है। जितनी इज्जतें मुस्तफा ने दी हैं किसने दी? किसी ने नहीं दी है। तो ऐ लोगों, जिस मुस्तफा ने इतनी इज्जतें दी हैं तो जरा बताओ उस मुस्तफा का दीन छोड़ करके जाओगे मेरी बहनों? चंद दिन की लज्जत की खातिर अपने इस्लाम से रिश्ता तोड़ोगी? ये इस्लाम बहुत कीमती है, इस इस्लाम की कोई कीमत नहीं दे सकता। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप लाइए बागवाला का सबसे गरीब इंसान, वो इंसान के जिसके तन पर जो कपड़ा पड़ा है बेशुमार लगे हैं पेबंद उस पर, उसके सर छुपाने के लिए छत तक मैसर नहीं है, झोपड़ी तक नहीं है, वो ऐसी फुटपाथ पर जिंदगी गुजारता है। खाने के लिए कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है उसको। ऐसे शख्स को आप पकड़िए और पकड़ के उससे कहिए, एक शख्स है मेरे पास और वो ये कहता है कि मैं तुझको 10 करोड़ दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि बस तू अपना रिश्ता मुस्तफा से तोड़ दे, ईमान से अपना नाता खत्म कर दे। तू मुस्तफा की गुलामी का जो पट्टा तेरे गले में पड़ा है, ये पट्टा मुस्तफा की गुलामी का निकाल दे। ऐ लोगों, मेरा ईमान मेरा विजान कहता है और आपका ईमान भी कहता होगा, खुदा की कसम वो भूखा रहने वाला, खुदा की कसम वो प्यासा रहने वाला, जिसके तन पर कपड़ा सलामत नहीं है, वरजस्ता वो जवाब देगा, तू क्या बोलता है? मेरी गरीबी को तू पैसे से खरीद लेगा और 10 करोड़ देकर के तू मेरा मुस्तफा से रिश्ता खत्म करा देगा। सुन, मेरा रिश्ता ईमान से इतना मजबूत है, ऐसे 10 करोड़ क्या 10,000 जहान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दूंगा। यानी ईमान की कीमत है जमीन से ज्यादा, ईमान की कीमत है जायदाद से ज्यादा, ईमान की कीमत है सोने और चांदी से ज्यादा। इतनी भारी कीमत है इस ईमान की कि जिस ईमान को पैसे के खातिर नहीं छोड़ा जा सकता, उस ईमान को मेरी माँ बहन बेटी, आज हमारी बेटियों को इस तरह की तरबियत देने की जरूरत है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने ईमान से सौदा ना करे। ऐ लोगों, पर्दे का कल्चर देने की जरूरत है, फातिमा ज़हरा का किरदार सिखाने की जरूरत है। आज हमने अपनी बेटियों को करीना का किरदार दिया, कैटरीना का किरदार दिया। जाहिर सी बात है कि जब हमारे घरों में 24 घंटे सीरियल का माहौल होगा, सुबह सीरियल, शाम सीरियल, रात सीरियल, पूरे पूरे दिन टीवी पर ऐ लोगों हीरो और हीरोइन की कहानियां होंगी। जाहिर सी बात है ये दिल जो है इस बॉडी के अंदर, इस दिल के हवाले से मुस्तफा ने क्या फरमाया था, अला व इन्न फिल जसदी मुद्गतन इज़ा सलह सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। ए लोगों, इसी को आज के साइंटिस्ट कहते हैं कि हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी। व्हेन द हार्ट इज गुड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज वेरी गुड। इस दिल के ताल्लुक से मुस्तफा ने फरमाया है, इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा ऐसा है, अगर वो सही हो जाए तो पूरे जिस्म का निजाम सही हो जाएगा, और अगर वो खराब हो गया तो पूरे जिस्म का निजाम खराब हो जाएगा। यानी ये छोटा सा दिल है जो इंसान के इस बॉडी में धड़कता है। जब मेरी बेटी मेरी बहन दिन भर करीना कैटरीना और हीरो हीरोइन
ہیروئن کی کہانی دیکھے گی، اے لوگوں یقینی طور پر اس کے ذہن میں خیال آئے گا میری بھی لائف ایسی لائف ہو، میری بھی زندگی ایسی زندگی ہو نہ ہو اے لوگوں کسی دن وہ آتم گھاتی قدم اٹھائے گی جس کی وجہ سے انسانیت بدنام ہوگی، مسلمان بدنام ہوگے۔ لیکن خدا کی قسم اگر میں اپنی بیٹی کے سامنے کردار رکھوں فاطمہ الزہرا کا کردار، اگر میں اپنی بیٹی کے سامنے کردار رکھوں حضرت اعلیٰ حضرت کی والدہ محترمہ کا کردار، اگر میں کردار رکھوں اس کے سامنے غوث اعظم کی والدہ کا کردار، اے لوگوں کیسا کردار تھا غوث اعظم کی والدہ کا، اتنا پاکیزہ، اتنا پیور، اتنا صاف ستھرا کردار کہ پوری زندگی حرام کی طرف قدموں کو بڑھایا نہیں ہے، پوری زندگی اس زبان سے حلال بولا ہے، حلال کے علاوہ کچھ بولا نہیں ہے، پوری زندگی اس زبان سے قرآن کی تلاوت کی ہے، سچ بولا ہے، سجدے کیے ہے، عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، بندگی کی ہے، کبھی ان کانوں کو کبھی غلط باتوں کو سن کر کے مجروح کیا نہیں ہے۔ ایسی پاک صاف ستھری ماں جب ہوتی ہے اس ماں کے پیٹ سے جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہی ولیوں کا سردار غوث اعظم ہوتا ہے۔ اے لوگوں عابدہ زاہدہ جو دن میں عبادت کرے رات میں عبادت کرے اور تلاوت کر کر کے اپنے بیٹے کو دودھ پلائے، اسی کا بیٹا وقت کا امام احمد رضا اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے۔ اب جب ماں اچھی ہوتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے تو قرآن پڑھ کے، ماں دودھ پلاتی ہے تو درود پڑھ کے، ماں جب بچے کی پرورش کرتی ہے ایسے کہ اس کے سامنے تلاوت کر رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، خدا کی قسم ماں ایسی ماں کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑی ہو جائے، پوری رات سجدے میں رہے، وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں بلکہ پوری رات سجدے میں گزار دے، سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ سر کب اٹھیں گے؟ جب فجر میں مسجد کا مؤذن اللہ اکبر کہے، اس وقت سجدے سے سر اٹھائے اور نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیرے نبی کی شہزادی ایک سجدہ بھی دل کھول کر کے نہیں کر سکتی، ایک ایسی رات بنا دے کہ کم سے کم ایک سجدہ تو دل کھول کر کے کر سکوں۔ جب ماں اتنی پاک صاف ستھری پیور ہوتی ہے اسی ماں کا بیٹا شہید اعظم امام حسین ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج حسین پیدا کیوں نہیں ہوتے، لوگ کہتے ہیں کہ آج غوث اعظم پیدا کیوں نہیں ہوتے، لوگ کہتے ہیں کہ آج معین الدین اجمیری پیدا کیوں نہیں ہوتے، لوگ کہتے ہیں کہ آج اعلیٰ حضرت جنم کیوں نہیں لیتے۔ میں ایک جملہ آگے بڑھ کر کے کہنا چاہتا ہوں، جب ماں عابدہ ہوتی ہے تو بیٹا اعلیٰ حضرت ہوتا ہے، ماں جب ساجدہ ہوتی ہے تو بیٹا ہندوستان کا راجہ خواجہ ہوتا ہے، ماں جب تلاوت کرنے والی تالیہ قرآن ہوتی ہے تو بیٹا ولیوں کا سردار غوث اعظم ہوتا ہے، اور ماں جب قرآن کی لوریاں سنا کر کے بچے کی پرورش کرتی ہے تو کربلا کے میدان میں بیٹا سر کٹا کر کے اسلام بچا لیتا ہے۔ اگر ماں کو اچھا کر لیا جائے میں ایقان کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں حسین نہیں تو کم سے کم آج بھی غلام حسین ضرور پیدا ہو جائے گے جو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم اونچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، حضرت علامہ مفتی بلال احمد بلاسپوری۔ سماج کا دل ماں ہے، سماج کا دل، اگر یہ دل اچھا ہوگا تب سماج اچھا ہوگا۔ اے لوگوں سماج کو پیوریفائی کرنا ہے تو ماں کو اچھا کرنا ضروری ہے، اس لیے اے لوگوں ماں کے سامنے، بیٹی کے سامنے، بہن کے سامنے فاطمہ الزہرا کا کردار رکھو۔ اے لوگوں وہ کہ جنہوں نے پوری زندگی ایسے عبادت کی ہے، ایسے ریاضت کی ہے کہ جب انتقال ہوا ہے تو وصیت کر کے گئی ہیں کہ میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے۔ اے لوگوں کسی نے کہا رات کی تاریکی میں کیوں اٹھائیں، دن کے اجالے میں بھی تو اٹھایا جا سکتا ہے۔ اے لوگوں دیکھیے کیسی تربیت کی تھی میرے آقا نے۔ اے لوگوں ان کا کردار، ان کا تیور بول رہا تھا کہ جب آج تک فاطمہ الزہرا کو جیتے جی آسمان کے سورج نے نہیں دیکھا تو میری خواہش یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی آسمان کا یہ سورج مجھے دیکھ نہ پائے۔ خدا کی قسم اے لوگوں اتنی صاف ستھری، اتنا صاف ستھرا کردار نبی کی بیٹی کا۔ آج آپ کو ضرورت ہے اپنی بیٹیوں کو یہی کردار سکھائیں کہ آپ نے دیکھا نہیں وہ دلی کی سرزمین ہے، قحط پڑ گیا ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے، جانوروں کے دودھ خشک ہو چکے ہیں، اے لوگوں سن سوکھ چکے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، امام جمع ہوئے ہیں، اماموں نے دعا کی ہے، مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں،
नमाज इस्तिस्का पढ़ी जा रही है, आपको जान करके हैरत होगी। बस 5 मिनट सुने, उसके बाद सलाम पढ़ेंगे। अरे लोगों 5 मिनट सुनिए, मैं आपसे जो जिक्र करना चाह रहा हूँ, जब कहत पड़ता है, सूखा पड़ता है, लोग कितने परेशान होते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, फसलें सूख जाती हैं, जानवरों के जो थन हैं दूध से खुश्क हो जाते हैं। यही हाल था दिल्ली का। लोग तड़प गए, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। पीरों से कहा दुआ करो, ए लोगों आलिमों से कहा दुआ करो, इमामों से कहा दुआ करो। आलिमों ने दुआ की, पीरों ने दुआ की, बड़े बड़े मशाइख ने दुआ की, लेकिन ऐ लोगों रहमत की घटाएं छा थोड़ी रही थी। ऐ लोगों अब करीब था कि लोग भूख की वजह से, शिद्दत प्यास की वजह से, सूखे की वजह से तड़प तड़प करके जान देने लगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह की वालदा मोहतरमा ने जब इस पूरे मंजर को देखा है, ऐ लोगों, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह की वालदा के हवाले से किताबों में लिखा है कि उनके बेटे हैं हजरत निजामुद्दीन। ऐ लोगों उन्होंने देखा कि तह साली पड़ गई है, तो वो अपनी वालदा के मज़ार पे आए। बहुत गौर से सुनिए, एक लफ्ज इसका मिस मत करना। और मज़ार पर आए और एक कोने में उनकी वालदा का एक दुपट्टा टंग रहा था। जोर से बोलो, क्या टंग रहा था? दुपट्टा। उस दुपट्टे को उन्होंने अपने हाथ में उठाया और हाथ में उठाकर अब उनके होंठ हिले हैं और वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते हैं, परवरदिगार ये मेरी माँ का पाकीज़ा दुपट्टा है, जिस दुपट्टे पर आज तक किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी है। मौला आज तक किसी गैर महरम ने इस दुपट्टे को देखा नहीं है। परवरदिगार इसी दुपट्टे की अजमतों का वास्ता बारान रहमत का नुजूल फरमा दे। अभी ऐ लोगों आसमान बिल्कुल साफो शफाफ था, कोई निशान नहीं था बादल का, लेकिन ऐ लोगों जब दुआ की है तो आया है किताबों के अंदर के दिल्ली और अतराफे दिल्ली पर वो रहमतों की घटाएं छाई हैं और ऐसी बारिश हुई है कि पूरी दिल्ली सरसब्ज़ शादाब हो जाती है। जरा गौर कीजिए, एक पर्दे वाली माँ दुआ नहीं कर रही है, उसके दुपट्टे का हवाला और वसीला देकर के दुआएं की जा रही हैं, तब दुआ कबूल हो रही है। उसके दुपट्टे में इतनी ताकत है तो फिर उस माँ का पावर का आलम क्या होगा। लेकिन आए लोगों हम अपना जरा किरदार तो देखें। आज हम बात करने लगे हैं मुस्तफा की, अरे यार हमको तो जेबी नहीं देता है कि हम बात करें मुस्तफा की। हमारा किरदार इतना खराब हो गया, कौन सी ऐसी बात है कि हम मुस्तफा को जाकर के मुंह दिखा सके। आखिरी बात कहकर के मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन ये 2 बातें हैं जो मैं आपसे करके जाना ही चाहता हूं। किस बात को लेकर के हम मुंह दिखाएंगे मुस्तफा को? आया है किताबों में, काना आखिरु कलामी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाता अस्सला। मौलाना खुर्शीद साहिब क़िबला बगौर सुने ये बात मेरी। ऐ लोगों मैं एक सवाल कर रहा हूं पहले आपसे, उसका आप मुझे जवाब दे। आपके गांव में किसी का आपने देखा होगा कि जब इंतकाल होने वाला होता है, आखिरी वक्त होता है, तो अपने बेटों को, रिश्तेदारों को या जिनको भी पॉसिबल होता है वो बुलाता है और बुला करके आखिरी वक्त में कुछ बातें कहता है। अच्छा ये बताओ, आखिरी वक्त में जो बात कही जाती है वो बहुत जरूरी होगी ना? जाहिर सी बात है कोई व्यर्थ की बातें, बेकार की बातें तो नहीं करेगा। और आखिरी वक्त की बात को हमारे यहाँ लोग वसीयत कहते हैं कि भाई फला ने मरने से पहले ये वसीयत की, और लोग उसको पूरा भी करते हैं। और मसला भी यही है कि अगर वो खिलाफ शरा ना हो, यानी वो शरीयत से ना टकराती हो, मुस्तफा के कानून और उसूल से ना टकराती हो, तो फिर उस वसीयत को पूरा किया जाए। यानी मरने से पहले कोई दुनियादार इंसान अगर कोई बात कहता है तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अब ये बात मैंने एक आपको मिसाल देके इसलिए समझाई। अब जो मैं बात आपसे कहने वाला हूँ, मेरे आका जब बज़ाहिर इस दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले थे, ऐ लोगों मुस्तफा जो जिंदगी भर मेरे लिए तुम्हारे लिए रोते रहे, आंसू बहाते रहे, कौन सा ऐसा दिन था कि जिस दिन मुस्तफा ने आंसू नहीं बहाए हैं? दिन के उजाले में मुस्तफा ने तुम्हारे मेरे लिए आंसू बहाए, रात की तारीकी में मुस्तफा रोए हैं, खलवतों में रोए हैं मुस्तफा, जलवतों में रोए हैं। हमें तुम्हें गुनाहगार उम्मत को ज्यादा याद किया है तब मुस्तफा रोए हैं। मस्जिद नबवी में आंसू बहाए हैं मुस्तफा ने, हुजरे आयशा में रोए हैं मुस्तफा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात करने गए हैं मेराज की रात, तब मुस्तफा हमें तुम्हें याद कर रहे हैं। किताबों में यहाँ तक आया है मेरी तुम्हारी गुनाहगार उम्मत की ज्यादा याद सताती थी। पहाड़ों के पीछे चले जाते थे मेरे आका और वहीं पर सजदा करके इतना रोते थे, इतना रोते थे कि जमीन मुस्तफा के आंसुओं से भीग जाया करती थी। बरेली के आला हजरत ने जब मुस्तफा
मुस्तफा की शान करीमी को पढ़ा है, वो भी रोते रोते अर्ज करते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। वो मुस्तफा हैं जो पल पल तुम्हारे लिए मेरे लिए आंसू बहा करके गए हैं। वो मुस्तफा कब चाहेंगे कि ए लोगों कांटा भी हमारे पैर में चुभ जाए, लेकिन याद रखो मुस्तफा बज़ाहिर पर्दा फरमाने वाले हैं, आखिरी वक्त है मुस्तफा का। मुस्तफा को मालूम है मैं अपने गुलामों के बीच में से जाने वाला हूँ। अब जो मुस्तफा ने हदीस में कहा है जरा उसको गौर से सुने, जो आका फरमाते हैं, कान आखिरु कलामी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाता अस्सला। मुस्तफा जा रहे हैं लेकिन गुलामों तुम्हें ये पैगाम दे करके जा रहे हैं, ए मेरे गुलामों ये मेरी नसीहत है तुम्हारे लिए, ये मेरी वसीयत है तुम्हारे लिए, तुम नमाज मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना, तुम नमाज की पाबंदी करना, नमाज को हिर्ज़े जां बना करके रखना। ये कौन कह रहा है? ये वजह तख्लीक कायनात मुस्तफा कह रहे हैं। ये बात किसकी है? ये बात उन्हीं की तो है जिनकी याद में हम तड़पते रहते हैं। आज दूसरे लोग तुमको हमको जब देखते हैं ईद मिलादुन नबी के जुलूस में और हमारी नमाज क़ज़ाएं हो रही होती है, और लोगों जो जुलूस को नहीं मानते हैं वो तुम्हें मुझको जब बेनमाजी देखते हैं तो कहते हैं कि देखो ये कैसे आशिक रसूल है। ए लोगों वो मिलाद पर हमला कर देते हैं और कहते हैं ये कैसा इश्क है। मैं आपसे ये पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ भाइयों, तुम मुस्तफा का मिलाद भी मनाओ और जब नमाज का वक्त हो जाए तो अल्लाह के सामने सर भी झुका दो और दुनिया वालों को पैगाम दे दो, हम मिलाद वाले भी हैं और हम नमाज वाले भी हैं। ये सच्चा इश्क होगा मुस्तफा से। लेकिन ऐ लोगों आज हाल क्या है हमारा? मस्जिदें हमारी वीरान है, मस्जिदें हमारी सोनी है। कौन सी ऐसी बुराई है जो हमारे अंदर नहीं पाई जा रही है? कौन सी ऐसी बात है जो जिससे मुस्तफा ने रोका है और हम कर नहीं रहे हैं? ऐ लोगों आज हमारा हाल तो ये हो गया है, हराम खाया जा रहा है लेकिन कोई फिक्र नहीं है, और फिर बड़े नमाजी बन रहे हैं कि हम नमाजी हैं। आका ने फरमाया है कि जब एक लुकमा इंसान के पेट में हराम का जाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती है, उसकी इबादत कबूल नहीं होती है। लोग कह रहे हैं हमको मारा जा रहा है, अब दुआ कर रहे हैं तो दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? मुसलमानों को काटा जा रहा है तो दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? सुन लीजिए आखिरी बात जो मुस्तफा ने इरशाद फरमाई है। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा व इन्नल्लाह तआला अमरल मुमिनीना बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन व क़ाल तआला या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबात व क़ाल तआला या अय्युहन नासु कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम सुम्मा ज़करा रजुला युतीलु सफरा अशअसा अकबरा यमुद्दु यदैहि इला समा या रब अन्ना युस्तजाब मतअमुहु हराम मलबसुहु हराम मशरबुहु हराम इला आखिरिल हदीस। कहो सुभान अल्लाह। उलमा कहें सुभान अल्लाह। ऐ लोगों ये मुस्तफा की हदीस पढ़ के मैंने आपको सुनाया है। लोग कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। सुनिए दुआ कबूल क्यों नहीं होती है? आका फरमाते हैं अल्लाह पाक है और पाक ही को पसंद करता है। कोई किसी की नाजायज जमीन पर कब्जा कर ले, कोई किसी का माल हड़प कर ले, कोई किसी का रुपया पैसा दबा ले, कोई किसी की मजदूरी ना दे और फिर वो पका दे सो पतीले और कहे मैं 11वीं कर रहा हूँ। ऐ लोगों कभी उसकी 11वीं कबूल नहीं होगी। जो किसी की नाजायज जमीन पर कब्जा कर ले, जो किसी का माल दबा ले, कोई जरूरत नहीं है उसको। ऐ लोगों आने वाला है अगला महीना 11वीं का, बड़ी 11वीं की जाएगी। लेकिन ऐ लोगों 11वीं होती क्या है? ऐ लोगों हलाल होता है तो अल्लाह उसको कबूल करता है। यही तो अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। 12वीं में बड़ा लंगर खिलाया गया, लेकिन वो लंगर है कौन सी कमाई का? कभी गौर किया है उस पे? अल्लाह पाक है, पाक को कबूल करता है। गौसे आजम की खिदमत में आया है गुलाम, सोने के सिक्के यानी अशरफियां लेकर के आया, पूरी एक भारी थैली थी, कहा हुजूर कबूल कर लो। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला ने आंखें मीच के फरमाया ले जाओ, इसको मुझको जरूरत नहीं है। ऐ लोगों आज पीरों के पास कौन नजराना नहीं लाता है? आज के पीरों को तो कोई फिक्र ही नहीं है कि जायज है कि ना जायज है, हलाल है कि हराम है, तैयब है कि तैयब नहीं है। माँ बाप को गाली बक के सता के आए, कोई मतलब नहीं है, कोई